Good morning, dear children. This is Christina Thomas. Welcome you all in the new session 2021 and 22. और जैसे आप जानते हैं कि पेंडेमिक के कारण हमारे स्कूल्स अभी भी फिजिकली बंद है, बट वी आर गोइंग टू कंडक्ट क्लासेस ऑन द जूम एंड ये आपका आज साइंस का फर्स्ट लेक्चर है जो कि वीडियो फॉर्म में हम आके आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं. And you all have to every day observe all these videos carefully, because very soon after completing this chapters we're going to conduct your exams also. So be prepared for this and observe all the lectures which we are providing you very carefully. Okay, so we're going to start chapter 3, force and pressure. This is a chapter of science 1. As you know that you have only one textbook for science, but the chapters are distributed as science 1 and science 2. So chapter 3, force and pressure, is a science 1 chapter. Okay, it's a chapter of physics. So we're going to start this chapter, and the first topic is taken you here, that is about the force. So it is giving you here that can you recall means क्या आप इसको वापस याद कर सकते हैं. आपने इसको शायद 6th में पढ़ा है. So you know the meaning of force. What is force? Force is something which we are going to apply on the object. Okay, you know that if a stationary object is there, अगर कोई रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है तो वो उसी जगह पर वैसे ही रखा रहेगा जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें. ओके, so this you already learnt about in the 6th standard about a force. Definition आपने उसका पढ़ा होगा. And it's mentioned here that uh, if an object if we apply a force on the object, then it started moving. Okay, and an object in motion continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object. So if a stationary object is there and if we don't apply the force on it, so the object will remain at its own place. But अगर आपने उस पर force apply कर दिया तो वो object जो होता है वो एक particular speed से एक particular direction में move होना start हो जाता है. Okay, so this is about the Newton's first law of motion. 9th में आप न्यूटन्स के 3 लॉज पढ़ने वाले हैं, बट आपको यहाँ पर उसने सिंपल एक फर्स्ट लॉ दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट in motion continues to move with the same speed and direction when no force acting on the object. Okay, this is Newton's first law of motion. So later on you will study about all this type of laws. अभी तो आपको केवल उसने एक first law mention किया हुआ है. So we're going to study about the force in this chapter. So let's discuss about the force. Let's see about the force. यहाँ पर उसने आपको 3 pictures दिए हुए हैं. You can see the first picture. A man is pushing a car, and in second picture you can see a dog is pulled by a boy, or you can say a boy is pulling a dog, and in third you can see a boy is kicking a ball. Okay, तो अगर हम इन तीनों का एग्जाम्पल लें, ये तीनों फोर्सेस को आप देखें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इन सभी में देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू. यहाँ पर आप देख सकते हो कि मस्कुलर फोर्स लग रहा है बिकॉज वो उसको पुश कर रहा है. सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हो इट्स अ मस्कुलर फोर्स. इन थर्ड डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी इट्स अ मस्कुलर फोर्स. ओके, तो यहाँ पर उसने आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस मेंशन किए हैं और जो आपको डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं आपको टेक्स्ट बुक में. इट इज़ अबाउट द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एंड लेटर ऑन यू विल स्टडी अबाउट द बैलेंस्ड एंड non unbalanced force. Okay, so we'll see about the contact and non-contact force. By the name itself you can understand contact force means the force in which there's a contact between two objects. Okay, so definition is given you here. Let's see the definition at first and then we will see the example. The first you can see here, this is the definition. A force is seen to act through a direct contact of the objects or via one more object. Such a force is called a contact force. So ऊपर जो भी पिक्चर्स आपने देखे थे
In all these three pictures you can see that there is a contact between two objects, है ना. A man is pushing a car, तो वो पुश कर रहा है, हाथों से धक्का दे रहा है, तो हाथों का कांटेक्ट आ रहा है कार में, कार से. यहाँ पर दिस बॉय इज पुलिंग अ डॉग, तो उसको खींच रहा है, आप देख रहे हो मस्कुलर पेन यूज कर रहा है. एंड देन अ बॉय इज किकिंग अ बॉल, तो यहाँ पर भी कांटेक्ट हो रहा है. तो यहाँ पर जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट्स मोशन में आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कांटेक्ट फोर्स. ओके, नेक्स्ट इज गिवन यू, some more examples are given to you. I hope you understood about the contact force. If there is a contact between two objects, the force applied between these two is called as a contact force. Now see, some more examples are given to you. This is about the examples of non-contact force. So first is given you coconut falling from a tree. Examples are mentioned at this side, and this is the pictures given to you. So the first diagram is given to you, a coconut. First example is taken here, that is about the iron nail gets attracted to the pole of a magnet. अगर आप एक मैग्नेट लें, यहाँ पर जो पिक्चर दे रहा है वो मैग्नेट का, दिस इज अ हॉर्स शू मैग्नेट. आप कोई भी मैग्नेट ले सकते हो. तो यू नो दैट अगर मैग्नेट के पास अपने आयरन नेल्स लेकर आते हैं, तो वो आयरन नेल्स जो होते हैं वो अपने आप ही मैग्नेट के पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ओके, यहाँ पर ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, अपने आप ही क्या हो रहा है, दूर से ही अगर आपने आयरन नेल्स को मैग्नेट के पास लेकर आए तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स. सेकेंड आप देख सकते हो, दिस इज द एग्जांपल, अगर आपने एक कोम लिया है और उसको आप अपने बालों पर रब करते हैं, तो और उसके बाद उसके पास अगर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लेकर आते हैं, तो ये जो पेपर होते हैं ये अपने आप ही कोम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, एंड थर्ड जो आपको दे रहा है, अ कोकोनट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन ऑन द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल था, इट इज अबाउट द magnetic force, the second is the electrostatic force, and third is the gravitational force. So yeah, here it is given the examples. Forces like magnetic force, gravitational force, and electrostatic force, they act without a contact. ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, and here it is a definition given to you. A force is applied between two objects even if the two objects are not in contact. Such a force is called a non-contact force. Okay, so I hope you understood between the difference contact force and नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो कॉन्टैक्ट. और अगर ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं बट स्टिल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो कहलाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, सो मस्कुलर फोर्स, ऊपर के तीनों पिक्चर्स जो थे जहाँ आप देख रहे थे, मैन पुशिंग अ कार, अ बॉय पुलिंग डॉग एंड अ बॉय इज किकिंग अ बॉल, ये सब मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल थे विच इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. और ये जो तीन एग्जाम्पल्स दे रहा है यहाँ पर आपको, मैग्नेटिक फोर्स and then gravitational force, electrostatic force, these are the examples of non contact force. Okay, इसके बाद उसने कुछ आपको एग्जाम्पल्स और यहाँ पर लिए हैं. शॉर्ट में अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँ इसका, उसने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है कि इफ अ बॉल इज केप्ट ऑन अ टेबल एंड पुश्ड अ लिटिल, इट मूव्स अहेड एंड गेट्स स्लो एंड स्टॉप्स. अगर आपने एक बॉल को टेबल पे रखा है और हल्का सा उसको आप पुश करते हैं तो वो थोड़ा सा रोल ऑन होती है और उसके बाद वो बॉल जो होती है उसका स्पीड कम होते हुए वो रुक जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, अ कार रनिंग ऑन अ प्लेन रोड. अगर एक प्लेन रोड पर कार दौड़ रही है तो कुछ समय के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अगर आपने उसका इंजन स्विच ऑफ किया तो वो रुक जाती है. उसका एग्जाम्पल, उसने रीज़न दिया हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. ग्राउंड और उस ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होता है इनके बीच में ऑटोमेटिकली एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स. अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे
दे वुड हैव रिमेन्ड इन मोशन। अगर वो चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं, है ना। हम लोग जो ग्राउंड पर चल पाते हैं, ग्राउंड सरफेस पर हम लोग इजिली चल पाते हैं, दैट इज अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम लोग नहीं चल पाएंगे, विल स्लिप एंड वी विल नॉट बी एबल टू वॉक। This is also the example of a contact force. So frictional force is also the example of a contact force. Okay. Now afterward, one activity is given to you here uh, to explain you about the contact and non-contact force. A very simple activity. In the diagram you can see here. What you have to do, take two plastic bottles with rectangular shape. आप दो प्लास्टिक की बॉटल्स लेंगे, उसने एक पर्टिकुलर शेप दिया हुआ है यहाँ पर, रेक्टेंगुलर शेप का आपको प्लास्टिक बॉटल्स लेना है। एंड इनका जो ओपनिंग्स होता है आप देख सकते हो इन दोनों डायग्राम्स में, इनको आपको टाइटली क्या करना है, क्लोज कर देना है। क्लोज देयर ओपनिंग्स बाय फिटिंग द लीड्स टाइटली। अब इनके ऊपर आपको, इन दोनों बॉटल्स के ऊपर आपको दो बार मैग्नेट्स रखने हैं। ये एक देख सकते हो आप बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एंड on this bottle also there is a bar magnet, north pole south pole. Okay, इनको आप स्टिकिंग टेप से प्रॉपरली टाई अप कर देंगे ताकि वो मैग्नेट्स वहाँ से स्लिप ना हो सके। अब एक बड़ा आपको प्लास्टिक ट्रे लेना है लाइक दिस, और इस प्लास्टिक ट्रे में आपको वाटर फिल करना है, ठीक है। और दोनों बॉटल्स को जिनके ऊपर आपने बार मैग्नेट टाई अप किया था, उन बॉटल्स को आपको पानी के ऊपर रिलीज कर देना है। तो वो बॉटल्स प्लास्टिक की हैं और उसको आपने टाइटली क्लोज किया है तो डेफिनेटली वो स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। ओके, अब एक बॉटल को आप कंसिडर करें, सपोज यू कैन टेक दिस बॉटल, या आप, चॉइस इज योर्स, आप इस बॉटल को ले सकते हैं या इस बॉटल को ले सकते हैं। एक बॉटल को स्टेबल रहने देना है, सेकेंड बॉटल को आपको उसकी तरफ मूव करना है। व्हाट विल यू सी कि अगर ये दोनों सिमिलर, सॉरी फर्स्ट आपको एग्जांपल ऑपोजिट पोल का लिया है, अगर ये ऑपोजिट पोल्स हैं तो आप देखोगे कि द फर्स्ट बॉटल विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेकेंड वन। ओके, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ये दिख रहा है आपको, तो ये अपने आप ही अट्रैक्ट होंगे, यू डोंट हैव टू पुश इट। ओके, अपने आप ही ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो there's attraction between these two, that means there is a force acting on it, but this is a contact, this is a non contact force. Okay, तो ये अट्रैक्ट होंगे। अब अगर आप बॉटल का डायरेक्शन चेंज करते हो, सपोज नॉर्थ पोल को इस तरफ ले आते हो, मतलब यू जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉटल, तो व्हाट विल यू फाइंड कि दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, तो सिमिलर पोल्स जो रहेगा तो दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। This is the activity which we can do to verify about the non-contact force। इसको आप घर में भी कर सकते हैं। You don't require the bottle also। अगर आप simply दो बार मैग्नेट्स को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो you can feel it कि अगर आपने opposite poles रखे हैं हाथ में तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट होंगे, और अगर आपने सिमिलर पोल्स रखे हैं तो इट विल रिपेल ईच अदर। ओके, this is all about the contact and non-contact force. I hope that you understand the topic properly. That's all for today, dear children. Bye bye and take care.